Let the recording start. Yes. Good evening once again. अल्फाबेट टेस्ट में पहला टॉपिक ये वाला देखा हमने. I'm just telling you, giving you an overview of this topic, in which each question of 1 mark will be asked. Second type is this number series, in which one series will be for 5 marks. Okay, it is a 5 marks का question. Then दूसरा आता है this type of word series. यहाँ पे दिख रहा है NSX, GHD, TUF, EOK. This is what nothing but a word series. Even though the words may not be meaningful, but still they are treated as a word. NSX is one word, GHD is another, TUF is another word. Okay? And lastly जो pattern है that is वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ जो it is combination of numbers, words and symbols. ठीक है, तीनों का combination है. और दूसरा एक pattern है ये वाला. This is a new pattern जहाँ पे आपको for the given question, for this given numbers or elements, you have to find out how they will be coded as. ठीक है, so this is really new pattern. और पहले हम चलते हैं simple questions की तरफ जो कि है अल्फाबेट वर्ड सीरीज देख लेते हैं. ठीक है, so that you will get an idea of this topic. ये जो PDF है, yes it is very easy to solve. Nothing is there. Just question read करना है. Question में जो भी changes करने के लिए बोले हैं that you need to do, and that's it. You will get the answer very quickly. So 5 questions are solved within a minute. Okay, if your practice is there. Without practice also you can solve it in 2 to 3 minutes, not more than that. For 5 questions 2 to 3 minutes are sufficient. Even though if there is no practice, अगर practice करते हो, अच्छे से practice हो गई है, then within a minute you can solve. ठीक है, तो ये जो particular PDF आपके सामने है ना, no need to write down the question, okay, because same PDF you will be getting for your practice also, and इसके अलावा भी PDF होंगे practice के लिए, but this PDF will be there for you to practice क्योंकि इसमें बहुत सारे questions हैं. We are not going to cover all. 1-2 question of each type we will take. Okay, you just note down the question number, note down the series, so that when you go back and refer, you will find out the exact question. Okay, just write down question number और ये जो series है ना वो लिख लो. NSX, GHD, ये वाली जो series है, write down that. Very less number of students are joined. Let me just ठीक है. So let's concentrate on question number 1. क्या दिया है? If all the letters are changed to next alphabet in the alphabetical series, then how many words have at least one vowel? ठीक है, सबको vowel and consonant सबको पता है. कोई ऐसा है जिनको नहीं पता what is a vowel and what are the consonants? अगर किसी को नहीं पता है then only raise hand. अगर किसी को नहीं पता है then only raise hand. ठीक है, सबको पता है what is a vowel and what is a consonant. 5 vowel होते हैं, सबको पता है A, E, I, O, U. अब क्या दिया? If all the letters are changed to the next alphabet, तो just we have to perform these operations on the given series.
अब देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में एन के बाद कौन सा लेटर आता है, ओ आता है, सो एन विल बी चेंज टू ओ। एस के बाद क्या आता है, टी, एंड एक्स के बाद आता है वाई, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड एन एक्स एस हैज बिकम व्हाट, ओ टी वाई। देन नेक्स्ट वर्ड है जी एच डी, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, डी के बाद आता है ई। देन टी यू एफ, टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है वी, एंड एफ के बाद आता है जी। देन ई ओ के, ई के बाद आता है एफ, ओ, पी, एंड के, एल, एंड लास्टली वाई, इट विल बिकम जेड, डी बन जाएगा ई, एंड क्यू बन जाएगा आर। ओके, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एट लीस्ट वन वॉवेल, मतलब आपको कौन से वर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें एक वॉवेल तो होना ही चाहिए, लेकिन एक से अगर ज्यादा भी वॉवेल हो तो वो भी वर्ड आपको काउंट करना है। व्हाट इज द कंडीशन, हैव एट लीस्ट वन वॉवेल, तो एक से ज्यादा चलेगा बट एटलीस्ट वन शुड बी प्रेजेंट। सो इसमें वॉवेल है ओ, हियर इन दिस वर्ड आई और ई दो वॉवेल्स हैं, यहाँ पर भी वॉवेल है एंड यहाँ पर भी वॉवेल है। सो हाउ मेनी सच वर्ड्स आर देयर, 4 वर्ड्स। ठीक है, इतना सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर विद दिस? चलो देन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कंडीशन, क्या बोला है कि अज्यूम ए कम्स आफ्टर जेड इन केस अगर इस सीरीज में कहीं पे जेड अल्फाबेट होता तो आफ्टर जेड व्हाट टू टेक, नेक्स्ट लेटर। आप सोच में पड़ जाओगे ना कि जेड के बाद कौन सा लेटर आता है, तो ए लेना, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके सर्वेश, चलो सेकेंड क्वेश्चन। What is said if the first and third letter of each word is interchanged? अभी क्या किया है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को इंटरचेंज किया है, कहाँ पे, ओरिजिनल सीरीज में। ठीक है, तो दिस फर्स्ट वर्ड विल बिकम व्हाट, एक्स एस एन। सेकेंड वाला क्या बन जाएगा, डी एच जी। थर्ड वाला क्या बनेगा, एफ यू टी। देन फोर्थ वन विल बिकम के ओ ई, एंड लास्ट वन विल बिकम क्यू डी एंड वाई। ओके, और इंटरचेंज कर लिया। नाउ देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो अभी अरेंज करने की जरूरत है क्या, आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, जो अल्फाबेट पहले आता है उसको लिखना है। तो ये वाला जो वर्ड है डी एच जी, इट विल कम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं हम अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ही पूछा है, राइट एंड से अगर पूछा होता तो क्या करते हम, द वर्ड विच कम्स लास्ट, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड से पूछा है, मतलब फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, ये वाला डी, स्टार्टिंग विथ डी। तो ओरिजिनल वर्ड क्या है, डी एच जी, किससे बना है, जी एच डी से, तो वही आपका ऑप्शन में मिलेगा, देखो। So that you need to mark option B, that is GHD. Clear everybody? अगर डाउट है तो पूछो, if there is any doubt ask. ग्रीष्मा देखो, पहले क्या बोला था कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, तो वो इंटरचेंज कर दिया। देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, क्या बनेगा, डी एच जी, एफ यू टी, के ओ ई, क्यू डी वाई, एक्स एस एन, राइट।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब कौन सा, दिस विल बी द लेफ्ट हैंड एंड दिस विल बी द राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से पहला वर्ड कौन सा है, DHG। लेकिन ऑप्शंस में हमेशा जो सीरीज मतलब जो ओरिजिनल वर्ड है वो आपको मिलेंगे। तो DHG किससे बना था, GHD से, तो वो ऑप्शन हमने मार्क कर लिया। गॉट इट। ट्राई टू सॉल्व दिस वन, थर्ड वन। ऑप्शन ए, ओके। This is the original series, right? And what they have said, if all the consonants are changed to the previous letter, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं हर एक वर्ड में चेंज देम टू द प्रीवियस लेटर, मतलब पहले वाला लेटर, ठीक है। तो एन के पहले क्या आता है, एम। बिफोर एस, विच लेटर कम्स बिफोर एस, आर। एक्स के पहले, ये तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट को चेंज करना है, वोवेल के ऊपर कुछ नहीं करना। एक्स के पहले आता है डब्ल्यू, राइट। उसी तरह से सारे वर्ड्स को कर लेंगे। बिफोर जी व्हाट डू वी हैव, एफ। एच के पहले आता है जी एंड डी के पहले आता है सी। एंड टी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, so it will be S. U is a vowel, so U को as it is रखना है। F के पहले क्या आएगा, E. E is a vowel, keep it as it is. O is also a vowel, keep it as it is. Now K is what, consonant, तो उसके पहले आएगा J। लास्ट वर्ड में Y लेटर है, कॉन्सोनेंट है, Y के पहले क्या आएगा, X। D is also consonant, so previous to D कौन सा लेटर है, C। एंड प्रीवियस टू क्यू कौन सा लेटर है, P। अब क्या पूछा है, ये करने के बाद हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वोवेल, कितने वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा वोवेल है। अभी एक वोवेल से काम नहीं चलेगा, एक वोवेल जिस वर्ड में होगा उसे मार्क करके काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा ही होने चाहिए। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं, यहाँ पे देखो दो वॉवेल्स है यू ई, यहाँ पर भी दो वॉवेल्स है ई एंड ओ। तो सिर्फ दो ही वर्ड्स है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, जहाँ पे एक से ज्यादा वॉवेल आए। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, टू वर्ड्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी तक का सबको समझ में आ रहा है, ओके।
ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्ड्स को अरेंज करना है। इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो अपनी डिक्शनरी ऑर्डर होती है ना, पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, उस हिसाब से ये जो ओरिजिनल वर्ड्स है, ओरिजिनल जो सीरीज है, उसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पोजीशन किन वर्ड्स की सेम अनचेंज्ड है। तो मैं यहाँ पे पहले ओरिजिनल सीरीज लिखती हूँ। तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के हिसाब से पहला वर्ड कौन सा आएगा, ये वाला EOK। नेक्स्ट होगा GHD, फिर होगा NSX, देन TUF एंड लास्टली YDQ। अब देखो कितने वर्ड्स जो हैं वो सेम जगह पे रहे हैं, ये वाला GHD और लास्ट वाला YDQ। तो कितने वर्ड्स है टोटल, 2 वर्ड्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को इंटरचेंज करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व करो। कितने वर्ड्स हैं जिसके एंड में वोवेल है? So I think there is only one word. Yes, very good. Absolutely. क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने ये सीरीज यूज की है ना, XSN DHG FUT KOE QDY, वही सीरीज को हमें यूज करना है, क्योंकि वही बोला है फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को इंटरचेंज करना है। तो हाउ मेनी वर्ड्स एंड विद द वोवेल। तो यहाँ पे देखो आखिर में सिर्फ एक ही वर्ड है जहाँ पे आखिर में आपको वोवेल दिख रहा है। तो ओनली 1। ठीक है, इजी लग रहा है सबको? एग्जाम में सॉल्व कर लोगे? यस, चलो वेरी गुड। अभी एक मैं सीरीज आपको देती हूँ सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करो। ये वाली सीरीज ले लो, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। क्वेश्चन नंबर याद से लिखो क्योंकि पीडीएफ में फिर आपको ढूंढने में आसानी होगी। डोंट राइट डाउन द क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन द सीरीज और क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करो। बाद में क्वेश्चन लिख सकते हो, यू कैन लीव सम स्पेस टू राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 सॉल्व करना है। ओके, दिस वन।
फर्स्ट का सी आ रहा है आंसर। ओके चलो लेट्स सी फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है। If second letter and last letter of each word are changed to the previous alphabet in the English alphabetical series, which of the following has exactly one vowel? डी ऑप्शन आ रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं, palm and rush. ओके तो सेकेंड एंड लास्ट लेटर आर चेंज टू द प्रीवियस वन. तो ए, तो एल का प्रीवियस क्या होगा? जेड. आई एंड डी का प्रीवियस होगा सी. देन मोड में प्रीवियस टू ओ विल बी एन एंड ई का प्रीवियस होगा डी. थर्ड में पी, जेड, एल एंड एल. एंड लास्टली आर का होगा, आर का प्रीवियस होगा, सॉरी आर एज इट इज. यू का प्रीवियस होगा टी, एस एंड एच का प्रीवियस होगा जी. Then which of the following has exactly one vowel? Exactly one तो इसमें है, तो सी ऑप्शन आ रहा है. डी कैसे आया? सी आ रहा है ना ऑप्शन. हाँ वही. हाँ ओके. Then question number 17. If all the letter of the each word are arranged in the descending order within the word, how many words are starting with vowel? ठीक है, क्या करना है? If all the letter of each word are arranged in the descending order. Descending order मतलब क्या? उल्टा. Within the word ही करना है. तो लेड जो पहला वर्ड है, मैं हर एक वर्ड का यहाँ पे लिखती हूँ so that there will be no confusion. ठीक है, लेड क्या बनेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. ठीक है, सो दिस विल बी एल आई डी ए, ऐसे बनेगा. फिर सेकेंड वर्ड जो है मोड, दिस विल बिकम ओ एम ई डी. देन जो वर्ड है पाम, इट विल बिकम पी एम एल ए. एंड जो लास्ट वर्ड है रश, इट विल बिकम एस, सॉरी यू यू एस आर and H. Okay. Then how many words are starting with a vowel? कितने words start हो रहे हैं vowel से? Only one word. Only one word is starting with a vowel. Option A कैसे आएगा? Option will be D. D option है. Only one word is starting with a vowel. So option D. अभी वो नहीं दिख रहा था आपको, so that is okay. अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ रश भी है ना. यू, अरे आई कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट. यस यस यस, सॉरी. यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ए ऑप्शन 2 है. यस ये वाला भी है, वो ऊपर लिखा है ना, तो आई डिडंट जस्ट. ठीक है ठीक है. यस करेक्ट करेक्ट, ऑप्शन ए.
Then question number next 18, मतलब third question for that series. सीरीज में कौन से वर्ड्स हैं? लेड, मोड, from, and rush. If all the consonants of the each words are changed to next letter in the English alphabetical series, all the consonants are changed to next letter. और फाइंड क्या करना है? At least 2 vowel. How many words? Three words आ रहे? Okay. At least 2, मतलब minimum 2, maximum 3-4 भी हो सकते हैं, because one word is of 4 letters. So consonant को change to the next letter. So L will be M, A, R, and D will be E. Then N, O, E, and E. So yes, ये एक word आ रहा है, ये second word आ रहा है. Then palm will become, P will become Q, A, M, N. तो ये नहीं आएगा. And last वाला R will become S, U, S will become T, and H will become I. So yes, 3 words. So option C. Next question, question number 4. अभी क्या करना है? We have to arrange in the ascending order. Then they would appear in the word dictionary from, लेकिन right to left करना है, ठीक है? Right to left. अभी इसका मतलब क्या होगा? राइट टू लेफ्ट असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो हमने ये किया है ना, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है ना हमने, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोला है. मतलब ये जो वर्ड है लेड, इसको राइट टू लेफ्ट में अरेंज, मतलब यहाँ पे पहले एल आएगा, फिर डी आई आएगा, फिर डी, फिर ए, ऐसे दिस वे. Then they would appear in the words of dictionary from right to left. ऐसा ही क्वेश्चन है ये. All the letters of each word. Then they would appear in the words of dictionary. अच्छा अच्छा, okay okay. Okay, then right to left. All right. Okay okay. Laid, mode,
हाँ यस, प्रियंका का पॉइंट सही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी देखो क्या बोला है कि पहले क्या करना है, ईच वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर जो वर्ड्स आएंगे उनको राइट टू लेफ्ट अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे होगा ADIL, ये वाला बनेगा DEMO, palm will become ALMP, and lastly rush will become HRSU। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अभी इनको डिक्शनरी अरेंजमेंट के हिसाब से बिठाना है, बट राइट टू लेफ्ट। तो सबसे लास्ट तो ये आएगा, राइट टू लेफ्ट मतलब सबसे लास्ट में, मतलब यहाँ पे हम पहला वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे हम लास्ट वर्ड लिखेंगे, तो लास्ट तो ये आएगा HRSU, थर्ड ये होगा एंड ALMP, और पहला वर्ड कौन सा होगा ADIL। देन विच ऑफ द वर्ड विल बी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से थर्ड वर्ड कौन सा है, this one ALMP, that is what, nothing but palm, so option B। Option B, yes। And then last question number 5, ये सारे वर्ड्स को एक सीरीज कंसिडर करना है, and all the letters are changed to the next letter of the alphabetical series, then how many vowels are there in the series after rearrangement? तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सीरीज में लिखते हैं, फिर उसको नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज में चेंज करते हैं। ऐसा कुछ भी मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो। ठीक है, अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। ये वर्ड्स है राइट, लेड, मोड, पाम एंड रश। अभी आपको क्या पूछा है, दैट हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी देयर आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब ये बात तो पक्की है कि जब हम वॉवेल को नेक्स्ट अल्फाबेट में चेंज करेंगे वो डेफिनेटली वॉवेल नहीं होगा, वो डेफिनेटली वॉवेल नहीं होगा, तो उनको पहले हटा दो यहाँ से, क्योंकि वॉवेल के बाद वॉवेल नहीं आता। AEIOU ये जो है वो डिस्टेंटली प्लेस्ड है, तो वॉवेल को जब नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करेंगे तो वॉवेल हमें मिलने वाला नहीं है, एंड वी वांट द वॉवेल्स। तो अभी एल के बाद, अभी फटाफट से देख लो, एल के बाद एम आएगा, इज इट अ वॉवेल, नो। डी के बाद ई आएगा, जस्ट राइट डाउन। एम के बाद आएगा एन, इज इट अ वॉवेल, नो। यहाँ पे डी के बाद आएगा ई। पी के बाद क्या आएगा, क्यू, इट इज नॉट अ वॉवेल। एल के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा एन, नो वॉवेल। आर के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा टी, और एच के बाद आएगा आई। सो हाउ मेनी वॉवेल्स मिले हमें, 3 वॉवेल्स। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, डी, 3 वॉवेल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में वो अच्छे से ये लगाना पड़ेगा, लॉजिक बिठाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ये आपको प्रैक्टिस से और अच्छे से आएगा। दूसरी बात, आप और इसको अगर फास्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि जो भी वॉवेल्स हैं, ठीक है, जो भी वॉवेल्स हैं उसके पहले और बाद में कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, इफ यू नो दैट वेरी वेल, तो भी ये वॉवेल्स वाले, कॉन्सोनेंट वाले क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से कर पाओगे। ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इफ यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर एंड बिफोर लेटर वॉवेल के यहाँ पे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी वेरी क्विक।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं वो याद रखो। तो आपको हर एक बार सब लिखने की या सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, पेन पेपर बहुत कम यूज होगा और स्पीड बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो ये वाला टाइप सबको क्लियर हो गया। वर्ड सीरीज पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो एवरीबॉडी क्लियर विद दिस टाइप? रेज हैंड पे जस्ट क्लिक करो। यस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज नंबर सीरीज। अभी ये आपको ही टोटली सॉल्व करनी है, सेम उसी तरह से होगी, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये क्वेश्चन अभी लिख लो, ठीक है? राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा, या तो लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अप टू यू। सेम चीज है, सॉल्व करो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर्स इन द चैट। चलो लेट्स सी द आंसर्स टू दिस टू क्वेश्चंस। E and C, one is also C. Okay, C दोनों के भी ऑप्शन C आ रहे हैं। Okay. बाकी सब लोग भी बताओ what answers you all are getting.
All right, chalo, let's see the answers to these two questions. After arranging all the digits in increasing order within the number, what is the sum of the third digit of the highest number and of the first digit of the lowest number so formed? ठीक है, तो अभी क्या करना है, पहले ओके, तो इसको विद इन द नंबर आपको राइट डाउन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो 785 क्या बन जाएगा, 578. 243 क्या बन जाएगा, 234. 634 क्या बन जाएगा, 346. 397 क्या बनेगा, 379. एंड लास्टली 257. राइट. सो अब सम पूछी है, सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर. अभी इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, दिस वन इज द हाईएस्ट. इसका थर्ड डिजिट कौन सा है, थर्ड डिजिट दैट इज नंबर 8. एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर 234 है, इसका फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 2. इन दोनों की एडिशन करनी है. सो 8 + 2 क्या होगा आंसर, 10. तो क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. ओके. एंड सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, देखो, इफ वन इज एडेड टू ईच इवन डिजिट and 1 is subtracted from each odd digit, and then how many numbers so formed will be fully divisible by 2? If 1 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit. ठीक है, तो जो इवन डिजिट है उसमें 1 ऐड करो और ऑड डिजिट से क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको. तो यहाँ पे ये रही सीरीज. 7 इज व्हाट, ऑड नंबर, ऑड नंबर के साथ क्या करना है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, सो दैट विल बिकम 6. 8 जो है इवन नंबर है, तो उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो 8 + 1 विल बिकम 9. एंड 5 इज अ ऑड नंबर, माइनस, सो माइनस करेंगे 1. 5 - 1 विल बी 4. ठीक है, सेम चीज सारे नंबर्स के साथ कर लेंगे. सो ये बनेगा 3 5 2. This will become 7 2 5. 397 क्या बनेगा, 2 8 6. and lastly 4 6 3. so how many numbers are fully divisible by 2? तो 2 से डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं, जिसके एंडिंग में 0 2 4 6 and 8 होता है. राइट, जिसके एंडिंग में 0 2 4 6 and 8 होता है, वो नंबर क्या होते हैं, फुल्ली डिविजिबल बाय 2 होते हैं. तो ऐसे कितने नंबर से देख लो, ये वाला एंड दिस, 3 नंबर्स आर देयर. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 3. ऑप्शन सी. समझ आ रहा है ना आप सबको? ओके, ठीक है, चलो. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4 is in front of you. Try solving them.
ओके, फोर्थ का ऑप्शन आया है ए, थर्ड का क्या है, सी आ रहा है क्या थर्ड का, सी फोर. What is given question number 3? Which of the following numbers will be placed exactly in the middle of the series when all the numbers are changed to product of their digits and then arranged in ascending order from left to right? Okay. तो सारे डिजिट्स का क्या करना है आपको, प्रोडक्ट लेना है पहले. सो 7 into 8 into 5 ऐसे करेंगे. सो दैट विल बी हाउ मच, 280. देन 243 का क्या होगा प्रोडक्ट, 2 into 4 into 3 ऐसे करना है आपको. 8 into 3 24, then 6 into 3 into 4 72, then 3 into 9 into 7 189, and 5 into 7 into 2 is 70. फिर इसको क्या करना है, आफ्टर सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट लेने के बाद देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, देन 70, 72, 189 एंड 280. तो मिडल में जो नंबर था वो मिडल में ही रहा है एंड वही हमको पूछा है दैट व्हाट इज द मिडल नंबर. तो मिडल में कौन सा नंबर रहेगा, 634, ऑप्शन सी. एब्सोल्युटली क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी आ रहा है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. And then question number 4. What is asked? What will be the resultant when third digit of third highest number is subtracted from the first digit of second highest number? अभी गिवन सीरीज में कोई भी चेंजेस करने के लिए नहीं कहा है हमें. डायरेक्टली हाईएस्ट नंबर कौन सा है, दिस 785, और सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर लेना है. सेकेंड हाईएस्ट इज दिस वन 634. उसके कौन से डिजिट चाहिए, तो अच्छा सॉरी थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट ये होगा, ये जो है दिस विल बी व्हाट, हाईएस्ट नंबर. उसके नीचे ये वाला नंबर होगा, सो दिस विल बी सेकेंड हाईएस्ट एंड दिस विल बी व्हाट, थर्ड हाईएस्ट. तो थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट का थर्ड डिजिट कौन सा है, नंबर 2, फ्रॉम फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर. सेकेंड हाईएस्ट नंबर है 634, इसका फर्स्ट डिजिट इज 6, सो 6 minus 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4. सो ऑप्शन ए, इट इज 4.
And last question for this series, question number 5. So what is said, if all the prime digits are increased by 1 and all the composite digits are decreased by 1. ठीक है, अभी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर 1 या फिर द नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? प्राइम नंबर्स. जैसे कि 7, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 7 के फैक्टर्स दूसरे कुछ होते ही नहीं है, सिर्फ 1 और 7 ही उसके क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं. सेम 5 इज ऑल्सो व्हाट? प्राइम नंबर. फिर 2, 3 एंड यहाँ पे 7 एंड 5. बस 2, 3, 5 और 7, ये 4 ही प्राइम नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है. कौन से प्राइम नंबर्स है यहाँ पे? 2, 3, 5 एंड 7. दीज आर व्हाट? प्राइम नंबर्स. और बाकी के जो नंबर्स है वो क्या बोलेंगे हम उनको? कॉम्पोजिट डिजिट्स. तो प्राइम नंबर्स को क्या करना है? प्राइम डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 एंड कॉम्पोजिट डिजिट्स आर व्हाट? डिक्रीज्ड बाय 1. कॉम्पोजिट डिजिट्स को क्या किया है? डिक्रीज किया है 1 से. तो प्राइम डिजिट्स जो है उनको इंक्रीज करके लिख दो. दैट इज, ये बनेगा 8. 8 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो उसको डिक्रीज बाय 1. 5 will become 6, 2 will become 3, 4 will become 3, and 3 will become 4. 6 will become 5, 3 will become 4, and 4 will become 3. Then 3 is a prime number, it will become 4. 9 is a composite, it will become 8. 7 is prime, it will become 8. And lastly, 5 is a prime number, 6 banega. 7 is a prime number, it will become 8. And 2 is also a prime number, so that will become 6. Okay. Then what is asked? Then which of the following digits appear maximum times in the new sequence of form? तो कौन से digit आपको ज्यादा दिख रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो नजर आ रहे हैं वो 8 नजर आ रहा है मुझे. तो 1, 2, 3 एंड 4. 8 कितने बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स. एंड दूसरा नंबर एक दिख रहा है 3, वो देखते हैं कितने बार हो रहा है. 1, 2, 3 एंड 4. डिजिट 3 जो है वो भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मार्क करेंगे आप? बोथ ए एंड सी, क्योंकि ए ऑप्शन में लिखा है 3 एंड सी ऑप्शन में लिखा है 8. सो ऑप्शन डी मार्क करेंगे दैट बोथ ए एंड सी, 8 और 3 दोनों भी डिजिट्स जो है वो मैक्सिमम टाइम्स क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं. Okay, so option will be what? Option D.
ओके चलो, सो दिस वाज व्हाट न्यूमेरिक सीरीज थी ये. नाउ लेट अस टेक दिस वन. अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है जो 1 1 मार्क के लिए आते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंट टाइप. सो लेट अस सी. ये वाला जो पीडीएफ है, दिस आल्सो यू विल बी गेटिंग. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है. दिस आल्सो पीडीएफ यू विल बी गेटिंग फॉर टू फॉर प्रैक्टिस. नाउ चलो अभी ध्यान से सुनना. आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं. If a meaningful English word has to be formed using first, third, fifth and eighth letters of the word souvenir. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ क्योंकि हमें इस वर्ड पे जो है उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो द वर्ड इज सोवेनिर. इसका कौन से लेटर यूज करना है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट. तो मैं अगर इसका नंबरिंग कर देती हूँ सो मेरा काम जो है आसान हो जाएगा. सो आई हैव टू टेक फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट लेटर. इफ अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, मतलब ये जो लेटर्स है ना, पहला, तीसरा, पांचवा और आठवां, इस लेटर को स्क्रैम्बल करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ईच लेटर टू बी यूज्ड वंस ओनली, मतलब एक लेटर को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं. तो बताओ मुझे इन 4 अल्फाबेट से कौन सा वर्ड बनेगा? कौन सा वर्ड बनेगा? यस, श्योर, राइट. वर्ड बना है श्योर एंड यूजर. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी क्या हो गया, 2 वर्ड आ गए. 2 नहीं, यूज नहीं, ऑल द लेटर शुड बी प्रेजेंट. ऑल द लेटर शुड बी प्रेजेंट. ओके, चारों के चारों वर्ड्स होने भी चाहिए और एक बार ही आने चाहिए. तो 2 वर्ड्स बन गए. उन्होंने तो बोला था सिर्फ एक वर्ड बनाने के लिए. तो एक वर्ड अगर हमारा आता, मैं क्या बोल रही, ध्यान से सुनो. इफ वी हैव गॉट ओनली 1 वर्ड, सिर्फ एक वर्ड मिलता तो उसका थर्ड लेटर कौन सा है वो हमें बताना था. ठीक है, वो हमें बताना था. लेकिन अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे क्या लिखा है. इफ मोर देन 1 सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड देन मार्क एम एज योर आंसर. एक से ज्यादा वर्ड अगर फॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम द गिवन लेटर्स, देन व्हाट यू हैव टू मार्क एम एज द आंसर. एंड इफ नो मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन मार्क पी एज योर आंसर. अगर कोई भी वर्ड नहीं बन पाता है तो व्हाट यू हैव टू मार्क एज द आंसर, यू हैव टू मार्क पी एज योर आंसर. क्लियर? तो अभी इस केस में आप क्या करोगे, व्हाट ऑप्शन विल यू मार्क? क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और बताओ मुझे. सारा कुछ हमने सॉल्व कर लिया है, बस मुझे अभी आप लोग से ऑप्शन चाहिए. विच ऑप्शन विल यू मार्क? ओके, ईश्वरी और नुपुर कह रहे हैं ऑप्शन डी मार्क करना चाहिए. ओके, प्रियंका इज ऑल्सो सेइंग सेम, विश्मा इज ऑल्सो सेइंग सेम. यस, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हम मार्क क्या करेंगे, आंसर ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन डी. क्योंकि वी हैव गॉट मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड और उन्होंने बोला इफ मोर देन 1 सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड देन मार्क एम एज योर आंसर. इसीलिए ऑप्शन एम जहां पे लिखा होगा वो मार्क करेंगे. ठीक है, ये वाला टाइप क्लियर. ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन द एग्जाम. सीरीज भले ही ना आए लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. क्लियर एवरीबॉडी? रेज हैंड पे एक बार क्लिक कर दो और सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो. सेम टाइप है, सेकंड क्वेश्चन इज सेम टाइप.
जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है वही। अभी जो वर्ड है इट इज एक्नॉलेजमेंट। यस, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? अभी कौन से वर्ड यूज करने हैं? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, एट, नाइन। तो कौन से वर्ड मिले? ए, एन, ओ, ई, डी और टी। ये लेटर्स आपको मिले हैं। एक लेटर को एक ही बार यूज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वेरी गुड प्रियंका, बिल्कुल सही, करेक्ट वर्ड बनाया है आपने। इससे क्या वर्ड बनेगा? डोनेट। कौन सा वर्ड बनेगा? डोनेट। तो जब एक ही वर्ड और कोई वर्ड बन रहा है क्या? देखो, सारे लेटर्स को यूज कर, क्या यू हैव टू यूज ऑल द लेटर्स एंड सी वेदर इफ another such word can be formed. So what is the option? ऑप्शन क्या मार्क करोगे? बता दो जल्दी से। वाई आंसर क्यों मार्क करोगे? भाग्यश्री, ऑप्शन ई क्यों मार्क करोगे? यस, व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड? अभी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड तो बन गया ना डोनेट, तो उसका थर्ड लेटर पूछा है, सो दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज एन। यस, सो ऑप्शन सी यू विल मार्क। अभी एक और क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप समझाने जा रही हूँ। फिर बाकी के आप जो है दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व। बस वो एक पर्टिकुलर टाइप जो है वो बस मैं आपको बता दूं एंड देन, हाँ ये वाला, ये देखो दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला पीडीएफ भी
आपको मिलने वाला है। सो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट जो वर्ड्स हैं वो नोट डाउन करके रखो अलॉन्ग विद नंबर, तो कुछ गड़बड़ भी होती है, तो यू विल गेट इट प्रॉपरली। सो वर्ड क्या है? प्रूडेंशियल। ठीक है, अभी क्या पूछा है देखो, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्रूडेंशियल हैज as many letters either forward or backward between them as they have in the English alphabet series. ठीक है, this is also very important, very IMP, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। प्रीलिम्स में दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यू विल फाइंड इट। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो अभी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ना अल्फाबेट सीरीज लिखती हूँ। सबको पता है कि अल्फाबेट सीरीज आपको कैसे लिखनी होती है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है प्रूडेंशियल, अभी इसमें देखो यू नीड टू फाइंड आउट पेयर ऑफ लेटर्स। कैसे पेयर्स फाइंड करने? मैंने पहला पेयर आपको बोला, द फर्स्ट पेयर इज व्हाट? डी ई। डी ई। So how many pair of letters which has as many letters either forward or backward between them as they have in the English alphabet series? ठीक है, अब इस वर्ड में प्रूडेंशियल में डी और ई जो है वो साइड साइड में आए हैं, देयर इज नो गैप बिटवीन देम। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में भी डी और ई जो है वो साइड साइड में आते हैं। डी और ई में कोई गैप है क्या? नहीं है, बोथ आर बिसाइड वन अनदर, राइट, दोनों एक दूसरे के साइड में है। तो इसीलिए डी और ई एक पेयर होगा जिनमें उतना ही स्पेसिंग है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में होता है। तो कोई भी डायरेक्शन में देख लो आप, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, इस वर्ड के फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वर्ड के बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों तरफ आपको देखना है। ठीक है, फिर दूसरा आपको पैर, ऐसे आपको पैर ढूंढने। ये पैर कैसे आया वो पहले आपको समझा है क्या? वो मुझे बता दो पहले। डीई का पैर मैंने क्यों लिखा? एवरीबडी अंडरस्टूड दैट? हाँ, चलो तो दूसरा भी पैर मैं आपको बताती हूँ। दूसरा पैर है एन और आर का। दूसरा पैर है एन और आर का। ठीक है, देखो अभी एन और आर के बीच में वर्ड में देखो, हाउ मेनी आर देयर? 1 2 एंड 3, तीन अल्फाबेट्स हैं। सीरीज में देखो एन और आर के बीच में कितने हैं? 1 2 एंड 3। मतलब क्या है? स्पेसिंग सेम है। अल्फाबेट कोई भी होने दो, अल्फाबेट से फर्क नहीं पड़ता, स्पेसिंग सेम होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई एन आर इज ऑल्सो अ पेयर। ऐसे ही आपको पेयर फाइंड करने हैं और फिर मार्क करना है कि कितने पेयर्स हैं टोटल। तो अभी तक 2 तो मिले हैं, ऑप्शन में भी 2 है। अरे वही मैं अभी वही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन ही उसी चीज का चल रहा है कि पेयर कैसे फॉर्म करना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। फिर भी आप वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। डी और ई का पेयर जो है यहाँ पर साइड साइड में आता है, वही सेम अल्फाबेट सीरीज में भी साइड साइड में आता है। इसलिए मैंने कहा डी और ई एक पेयर है, क्योंकि इन दोनों में वर्ड में जो स्पेस आया है वही स्पेस सीरीज में भी है। सेम एन और आर के बारे में भी है। एन और आर के बीच में भी 3 वर्ड्स का गैप है वर्ड में, और सीरीज में भी 3 लेटर का ही गैप होता है, इसीलिए एन आर एक पेयर है। आर यू गेटिंग ग्रीष्मा? आपको देखना है और कोई ऐसे पेयर्स हैं क्या इस वर्ड में, यू नीड टू फाइंड आउट दैट। तो देख लो और कोई वर्ड मिल रहा है क्या ऐसे आपको? यस, वेरी गुड, ए ई, वेरी गुड, ए ई, राइट, ए ई। ए ई के बीच में भी देखो 3 लेटर्स है, और यहाँ पे भी ए और ई के बीच में आते हैं 3 लेटर, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। 3 पेयर्स भी ऑप्शन में लिखा है, अभी बस फाइंड करना है कि और एक पेयर है क्या। अगर है तो ऑप्शन ए मार्क कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। और एक पेयर कोई है क्या? टी और आई का पेयर?
JKLMNOP, वेरी गुड। फोर्थ पेयर है I और P का, वेरी गुड, I और P का पेयर, ठीक है। I और P में देखो काउंट करो, यहाँ पे JKLMNO इतने ही लेटर होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, और उतने ही यहाँ पर भी आए हैं। सो I और P, सो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, मोर देन 3। ऐसे कितने पेयर है, मोर देन 3, मोर देन 3, ठीक है। क्लियर हुआ ये टाइप सभी को? यस, चलो वेरी गुड। यस, चलो ये लास्ट क्वेश्चन, ये वाला आप कर लो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसके अभी और टाइप, और दो टाइप के क्वेश्चन हमें देखने हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे देखना है, एंड ये वाला न्यू पैटर्न एक देखना है। तो दो टाइप के क्वेश्चन जो है वो बच जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कल ले ली क्या, कल रख ले क्या हम, शुड वी कीप द सेशन टुमारो? तो आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर मंडे से वी कैन स्टार्ट न्यू टॉपिक। हाँ, सब लोग ऐसे यस यस टाइप करो जिनको लगता है कि कल भी रखेंगे। कल हम जल्दी रखेंगे सेशन, तो शाम के टाइम में इफ यू वांट टू गो आउट समवेयर या आपके कुछ प्लान्स होंगे तो यू कैन डू दैट। सो कल आफ्टरनून में रखेंगे सेशन। एंड शाम को मुझे भी एक कल वेबिनार अटेंड करना है, तो शाम में तो वोंट बी पॉसिबल, सो आफ्टरनून में रखते हैं, ठीक है। 1 आवर का ही सेशन रखेंगे कल, वी विल नॉट टेक 1.5 आवर, ओनली 1 आवर का सेशन रखेंगे कल। एंड फिर आपका ये टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। हाँ, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस फिर वो मंडे को ले लेंगे, मंडे को लेंगे, ठीक है, वी विल टेक ऑन मंडे। इस सैटरडे संडे को क्या है ना, कम स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, तो वो थोड़ा इश्यू हो जाता है, दैट इज व्हाई। पार्टनरशिप मंडे को लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। मंडे का भी सेशन ना थोड़ा मैं 1 आवर का ही रखती हूँ, ताकि जो हमने लिए हैं ऑलरेडी ना पार्टनरशिप एज एवरेज के जो क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं, सो वी विल टेक दैट क्वेश्चन एंड देन वी विल फिनिश ऑफ दैट टॉपिक। तो 1 आवर के सेशन में हो जाएंगे, वी विल प्रैक्टिस। मंडे को बेसिकली प्रैक्टिस ही होगी पार्टनरशिप एज और एवरेज की। ऑलराइट, चलो इसमें बताओ, सेम क्वेश्चन है, सेम आपको करना है, पेयर्स फाइंड करने हैं। द वर्ड इज गिवन ब्यूटीफुल, 2 मिनट्स आर रिमेनिंग, सेशन के लिए 2 मिनट बचे हैं। इसमें बता दो कौन से पेयर्स हैं। एक तो देखो टी और यू है, और कौन सा है, दूसरा मुझे मिला है आई और एल का पेयर, आई और एल। आई और एल के बीच में क्या होता है, जे के, मतलब दो अल्फाबेट्स होते हैं, यहाँ पे भी दो हैं। और ये टी यू तो साइड साइड में ही होते हैं, टी के बाद यू आता है, सो दैट। और कोई है क्या, तीसरा पेयर कोई मिल रहा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल में दो ही पेयर्स हैं। है ना, और कोई पेयर है क्या, नहीं है? अगर आपको कोई पेयर मिल रही है तो बताओ। नहीं है ना, मेरे ख्याल में तो यही दो है, और कोई मुझे नहीं दिख रही है पेयर।
है ना। सो यस, सो क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन सी 2। सो कल का टाइमिंग ना हम 4:30 का रखते हैं, ठीक है। टुमारोज सेशन विल बी 4:30 to 5:30। 1 hour में we will finish off this topic, okay। 4:30 to 5:30 कल का सेशन। All right, chalo, with this let's stop here for today and we will continue tomorrow.